Class. I know how to make ice cream, homemade ice cream. Mama, homemade ice cream. No. कैसे? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। शुरू करेंगे। हम देख रहे हैं ऑब्लिगेटरी नॉलेज दैट एवरी मुस्लिम शुड पोसेस। वो कंपल्सरी नॉलेज, कंपल्सरी इल्म जो हर मुसलमान को हासिल करनी चाहिए। अगर ये इल्म नहीं रहा तो उसको कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। तो ऐसे इल्म हम हासिल कर रहे हैं। हम बहुत दूर तक पहुंच चुके। आज हम शिर्क और कुफ्र के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीक भी, लास्ट वीक टू लास्ट वीक भी थोड़ा सा इस पे देख लिए थे। अब हम उसी से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत ही मेहरबान है, बहुत ही काइंड है, बहुत ही मर्सीफुल है। वो हर गुनाह को माफ़ करता है सिवाय शिर्क के, और ऐसे गुनाह जो शिर्क के इक्वल हो जाते हैं। शिर्क एक ऐसा गुनाह है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ नहीं करेगा। अगर कोई मुसलमान कहने वाला इस गुनाह में मुतला हो और वैसी हालत में वो मर जाए। हमने लास्ट वीक ये कहा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो बहुत बड़े ऊंचे नबी थे, उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, मुझको और मेरी ज़ुर्रियत को, मेरे बच्चों को आइडल वर्शिप से बचाओ, बुत परस्ती से बचाओ। तो जब इतने बड़े पैगंबर ही बुत परस्ती में गिर जाने, बुत परस्ती में मुतला हो जाएंगे करके डरे, तो हमको ये बात कितनी सीरियस है करके हमको मालूम होनी चाहिए। हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि हम शिर्क में नहीं गिर सकते। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे बड़े पैगंबर ने इससे डर का इजहार किया और अल्लाह से दुआ की, तो हमको भी जानना चाहिए कि हम भी इसमें गिर सकते हैं बिना जाने ही। और एक हदीस हमने पढ़ी थी लास्ट वीक, जिसमें ये कहा गया कि ऐसा वक्त आएगा कि एक मुसलमान सुबह तो मोमिन के हालत में रहेगा और शाम आते आते वो एक काफिर हो जाएगा। इसी तरह एक शख्स सुबह काफिर उठेगा और शाम होते होते वो मुसलमान हो जाएगा। तो ये इतना सीरियस मैटर है। अगर इस हदीस पे हम तवज्जो दें, अगर हम इस हदीस को ध्यान से समझें, तो हमको मालूम होगा कि ये कितनी सीरियस मैटर है कि हम सुबह तो मुसलमान हैं और शाम होते होते काफिर बन जाएं और हमको इसका इल्म भी ना हो। शिर्क क्या है? शिर्क एक
اللہ کے حق کو کسی اور کو دینا اس کو شرک کہتے ہیں. اللہ کے حق کو, اللہ کے رائٹ کو کسی اور کو دے دینا یہ شرک ہے. اسی طرح اللہ کے رائٹ میں کسی اور کو شامل کرنا, جو اللہ کا حق ہے اللہ کو تو دے رہے ہیں ہم, ساتھ میں کسی اور کو دینا وہ بھی شرک ہے. مثلا دعا کرنا کس سے جائز ہے؟ اللہ سے جائز ہے, اللہ سے دعا کرنی ہے. اگر ہم کسی اور کو بھی دعا کریں, اللہ کو کرتے کرتے اللہ کے ساتھ کسی اور سے بھی دعا کریں تو وہ شرک میں آئے گا. اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا کریں وہ بھی شرک میں ہے, وہ بھی شرک میں آئے گا. شرک کو علماؤں نے 3 حصوں میں بانٹا ہے. ہمیں سمجھنے کے لیے 3 حصوں میں بانٹا. ایک کبیر شرک, ایک صغیر شرک اور ایک خفی شرک. ایک بڑا شرک, ایک چھوٹا شرک اور ایک چھپا ہوا شرک. میجر شرک, مائنر شرک اور ہڈن شرک, یہ 3 حصوں میں ہے. میجر شرک کیا ہے؟ میجر شرک ایسا شرک ہے جس کو اگر کوئی مسلمان کرے اور ایسی حالت میں وہ مر جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی ہے, اللہ کے سوا کوئی اور ہے, تو وہ میجر شرک ہے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہماری مشکلات کو دور کرنے والا, مشکل کشا اللہ کے سوا کوئی اور ہے, ہم کسی اور سے مدد مانگتے ہیں ہماری مشکلات کو دور کرنے کے لیے, تو وہ میجر شرک میں آئے گا. ہم بھلے ہی کلمہ پڑھنے والے ہوں, دن رات کلمہ پڑھتے ہوں, 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہوں, تہجد پڑھتے ہوں, لیکن اگر ہمارا عقیدہ ایسا رہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے, کوئی اور بنانے والا ہے, کوئی اور مدد کرنے والا ہے, ہمارے مشکلات کو کوئی اور دور کرے گا, یا تو پھر اللہ تک پہنچانے کے لیے کسی کی ضرورت ہے, بات کوئی ولی کی, کوئی پیر کی, ہم ایسے ولی سے پوچھیں گے, ہم ایسے پیر سے مدد مانگیں گے, ہیلپ مانگیں گے کہ وہ جا کے اللہ سے ہماری بات رکھے, تو یہ میجر شرک میں آئے گا, یہ کبیر شرک ہے. مائنر شرک کیا ہے؟ مائنر شرک کا ڈیفینیشن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ سارے شرک جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مائنر کہا وہ مائنر شرک میں آئے گا. یا تو پھر وہ ویسے شرک, ویسے اعمال, ویسے کام, ویسا عقیدہ جو خود بخود تو میجر شرک نہیں ہے لیکن وہ میجر شرک کی طرف لے جانے والے ہوں, وہ مائنر شرک میں آئیں گے. اس کی مثال ہم دیکھیں گے ڈسکشن میں آگے چل کر. ایگزامپل, اگر ہم کوئی ایک ہاتھ میں تعویذ باندھیں, بچے کے گلے میں کوئی تعویذ باندھیں, ہم چھوٹا بچہ ہے, اس کو بری نظر سے بچانے کے لیے اگر ہم اس کے گلے میں یا اس کے ہاتھ میں کوئی تعویذ باندھیں, کوئی کالا دھاگا باندھیں, لال دھاگا باندھیں, تو یہ مائنر شرک میں آئے گا, چھوٹے شرک میں آئے گا, کیونکہ اس کا شریعت میں, اس کا سنت میں, اس کا اسلام میں اجازت نہیں ہے. اللہ نے ایسا کرنے کے لیے ہم کو نہیں کہا, نمبر 1. نمبر 2, ہم ایک ایسی چیز پر ہم بھروسہ کر رہے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کاز اینڈ ایفیکٹ جو دنیا میں یونیورسل لاس جو ہے,
अगर हम पत्थर फेंके तो नीचे गिरता, दवाई खाए तो हमारी तबीयत ठीक होती। ये कॉज एंड इफेक्ट है, हम देखते हैं, साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है। ऐसा ये प्रूव नहीं है तावीज बांधने से, तो ये माइनर शिर्क में आएगा। हिडन शिर्क क्या है? हिडन शिर्क में आएगा रियाकारी, दिखावा। दिखावा हाँ, इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं माइनर शिर्क के भी। हिडन शिर्क में आता है दिखावा, रियाकारी। कैसे? हम इबादत कर रहे हैं, फर्ज कर लीजिए हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमारी नमाज किसके लिए होना, किसको खुश करने के लिए? खालिसतन सिर्फ अल्लाह सुब्हानो ताला को खुश करने के लिए होना। अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा इंटेंशन हमारे पेरेंट्स को खुश करने का हो, तो ये रियाकारी है। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, कोई देख रहा है हमको, हम उस इबादत को और अच्छा ब्यूटीफाई कर देते हैं और एहसन तरीके से हम उसको अदा करते हैं, तो ये रियाकारी में आएगा, ये शिर्क है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए, जब हम शिर्क को माइनर कहते हैं या तो छुपा हुआ शिर्क कहते हैं, तो इसका माना ये नहीं कि इसका उतना इफेक्ट नहीं होगा। जान लीजिए, माइनर शिर्क और हिडन शिर्क मेजर गुनाह, बड़े गुनाहों से बड़ा गुनाह है। गुनाहों में, गलत कामों में जो सबसे बड़ा गलत काम है, उससे बड़ा शिर्क है, माइनर शिर्क है और हिडन शिर्क है, और उससे बड़ा मेजर शिर्क है। अब आगे देखते हैं कुफ्र। कुफ्र क्या है? कुफ्र भी शिर्क का दर्जा है, शिर्क के उतना, शिर्क के इक्वलेंट ये गुनाह है। इसको भी अल्लाह सुब्हाना ताला माफ नहीं करता। अगर हम किसी चीज को जो अल्लाह ने कुरान करीम में या सुन्नत में बयान कर दी है, अगर हम उसको डिनाई करें, अगर हम उसको कहें कि ये सही नहीं है, ये गलत है, या कोई फलानी आयत कुरान की सही नहीं है, या तो फिर ये आयत कुरान की नहीं है, ऐसा कहना कुफ्र है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई कहे कि शराब जो हराम है, जो कुरान में आया है, ये कुरान में नहीं होना था, ये गलत वर्स है, अगर कोई ऐसा बोले तो वो कुफ्र में जाएगा। अगला, अगर कोई चीज जो हलाल है, जो चीज हलाल है, फर्ज कर लीजिए बकरी का गोश्त हलाल है, अगर कोई आदमी कहता है कि ये हलाल नहीं है, ये हराम है, उस जमाने में हलाल था, उस जमाने में लोग गोश्त खाया करते थे, आजकल हमको ज्यादा इल्म है, गोश्त अच्छी चीज नहीं है, वेजिटेरियन ही खाना है, कोई भी गोश्त, बकरी का गोश्त गलत है, प्रोहिबिटेड है, हलाल नहीं हो सकता, अगर कोई ऐसा कहे तो ये कुफ्र में जाएगा। अगला पॉइंट कुफ्र में, शरीयत अल्लाह ने हमको दी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमको किस तरह जीना है, हमारी जिंदगी कैसे चलाना है, हमारी इकोनॉमी कैसे चलाना है, हमारे मामलात, हमारे कंट्रीज कैसे चलाना है, ये सब अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमको बता दिया है शरीयत में। अगर हम शरीयत को छोड़कर किसी और चीज को अडॉप्ट करेंगे
शरीयत को छोड़कर अगर हम किसी और चीज को अडॉप्ट करेंगे तो वो भी कुफ्र में आएगा। हमारी हालात अब इसका ऑप्शन हमको नहीं देती, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब हमारे कंट्रीज शरीयत के ऊपर नहीं है, कोई भी कंट्री शरीयत के हिसाब से नहीं चल रही, तो हमको यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। जो इसके जिम्मेदार हैं वो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हमको ऐसा ऑप्शन होता शरीयत और नॉन शरीयत, तो हमको शरीयत को ही चूज करना है। इंडिया के माहौल के हिसाब से वहां पर इंडिया में हमको सिविल लॉज के लिए शरीयत का इजाजत दी गई है। इंडिया में हम शरीयत सिविल लॉज तक हम महदूद हैं। अगर कोई आदमी वहां पर एक मुस्लिम सेकंड वाइफ लेता है, दूसरी शादी करता है पहली वाइफ के होते हुए, इसका इस्लाम में इजाजत है। अगर कोई फर्स्ट वाइफ या उसको सपोर्टर्स या कोई भी इसका एक बड़ा इशू बनाकर इसके खिलाफ खड़ते हैं, उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं वैसे आदमी का, तो ये जानते हुए भी कि इस्लाम में इसकी इजाजत है, तो ये कुफ्र में आएगा। अगला पॉइंट, गैर मुसलमानों के साथ दोस्ती करना मुस्लिम्स के ऑपोजिट में। अगर ऐसा मौका है जहां पर हमको एक साइड लेना है, हमको मालूम है ये ग्रुप मुस्लिम है और ये ग्रुप मुस्लिम नहीं है, तो हमें चाहिए कि हम मुसलमानों का सपोर्ट करें, नॉन मुस्लिम्स का नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि अनजस्टिस को सपोर्ट करें। अगर मुस्लिम्स अनजस्ट हैं, गलत काम कर रहे हैं, और गैर मुस्लिम जस्ट पे हैं, सही पे हैं, तो हमें ऐसी हालत में मुसलमानों का साथ नहीं देना। कुफ्र में नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे पॉइंट बताया है, सिहर, मैजिक, जादू। अगर कोई भी मुसलमान जादू में मुत्तला है, जादू करता है या करवाता है, तो ये कुफ्र में है। ये कैसे हमारे यहाँ पे होता है? नॉर्मल तौर पर हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों के बीच में अगर दुश्मनी डालना है तो रिलेटिव या कोई फ्रेंड, सो कॉल्ड फ्रेंड, जादू करवाते हैं ताकि ऐसे हस्बैंड एंड वाइफ में एमिकेबल एक अच्छे रिलेशंस ना रहे, उनमें दुश्मनी आ जाए। ये जो नॉर्मल इंडिया या कहीं भी जो जादू होता है, इस ढंग का जादू करते हैं। या तो इसका ऑपोजिट, अगर हस्बैंड और वाइफ में प्यार मोहब्बत नहीं है, तो ऐसी मोहब्बत लाने के लिए फिर जादू का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज कुफ्र है, हराम से बढ़कर है, कुफ्र है। अगर इससे कोई तौबा नहीं करके मर जाए तो अल्लाह सुब्हाना ताला इसको माफ नहीं करेगा। कुफ्र में अगला पॉइंट जो यहाँ पर बताया गया है, कोई भी चीज जो इस्लाम में क्लियर तौर पे पता है हमें और उसको हम नापसंद करें, तो अगर कोई भी चीज इस्लाम की, शरीयत की, सुन्नत की अगर हम नापसंद करें तो ये कुफ्र में है। एग्जाम्पल, पैंट्स, मर्दों को अपनी पैंट्स अपने एंकल के ऊपर तक पहनना चाहिए, अपने टखनों के ऊपर उनके पैंट्स होने चाहिए, टखनों तक टच नहीं होना। अगर कोई इसको हेट करे, इससे चिढ़े, अगर एक मुसलमान अगर कोई ऐसा पहन रहा है, उसको देखकर वो चिढ़े, इस रूलिंग से वो चिढ़े, इस्लाम के इस पार्ट से वो चिढ़े, तो वो कुफ्र में आएगा। ऐसे हम और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं।
हिजाब का, दाढ़ी का, बिजनेस में इंटरेस्ट में नहीं डील करने का पॉइंट, उससे कोई चिढ़े, या विरासत में औरत को एक हिस्सा और मर्द को जो 2 हिस्से हैं इसको नापसंद करे, या 4 शादियां करना इसको नापसंद करे, या तो औरत के रीमैरिजेस को नापसंद करे, तो ये कुफ्र में आएंगे। तो देखिए कितने मामूली तौर पर हम इसमें मुतला हो सकते हैं, इसीलिए हमको चाहिए हम इल्म हासिल करें। हम फॉर ग्रांटेड ये नहीं समझ सकते कि हम को इस्लाम पूरा मालूम है और कुछ जानने की जरूरत नहीं। देखिए छोटी सी चीज से हम इस्लाम और इस्लाम के बाहर जा सकते हैं। अगला पॉइंट जो यहाँ पे है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर नबी हैं करके अगर कोई इस बात को इनकार करे तो वो कुफ्र करे। जैसे जो अहमदियास, जो कादियानीस हैं, जो अहमदियास हैं, वो क्या कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी और एक नबी आया, माने क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर नबी नहीं माने, तो ये लोग कुफ्र में हैं, ये इस्लाम के बाहर हैं। अगली चीज जो हमको मालूम होनी चाहिए कि हमको रिद्दा से बचना है, रिद्दा नहीं होना। रिद्दा क्या है? इस्लाम को छोड़कर कोई और रिलीजन को अडॉप्ट करना, इस्लाम से बाहर चले जाना, इस्लाम को छोड़कर चले जाना, इसको रिद्दा कहते हैं या अपोस्टेसी कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिस किसी ने भी अपना दीन माने इस्लाम को छोड़कर कोई और दीन को अपनाया उसको मार दिया जाए। एक अगर इस्लामिक कंट्री रही तो वहां पे वहां का जज, वहां का हुक्मरान ऐसा डिसीजन लेता है। आजकल शादियों के लिए लोग अपना दीन बदल रहे हैं, मुसलमान से गैर मुस्लिम हो रहे हैं और गैर मुस्लिम से मुस्लिम हो रहे हैं। जो मुस्लिम से गैर मुस्लिम हो रहा है सिर्फ शादी करने के लिए, वो इस रिद्दा में आएगा, और जो नॉन मुस्लिम मुस्लिम हो रहा है अगर उसकी नीयत सिर्फ शादी करने के लिए है तो वो इस्लाम में नहीं आए जैसा, ही इज एज गुड एज ए नॉन मुस्लिम। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इसी का है, शिर्क और कुफ्र में ही आता है ये निफाक। निफाक माने हिपोक्रेसी। निफाक माने दिल में एक चीज बाहर एक चीज। जो लोग मुनाफिक हैं, जिनमें निफाकत है, जो लोग मुनाफिक हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है ये जहन्नम के सबसे भयानक जगह रहेंगे, सबसे ज्यादा जलने वाले लोग मुनाफिक रहेंगे। काफिरों से भी ज्यादा जो जलेगा, जिसको ज्यादा पनिशमेंट और ज्यादा टॉर्चर है, वो एक मुनाफिक को है। मुनाफिक कौन है? जो दिल में मुसलमान नहीं है लेकिन बाहर मुसलमान कहता है अपने आप को। कुछ क्वालिटीज हैं निफाक के, कुछ यहाँ पे मैं लिस्ट आउट किया। जैसे पहले वाला ये है, दिल में कुफ्र है, दिल में ईमान नहीं है, सिर्फ खाली बाहर बोल रहा है कि मुसलमान है। जैसे कि शादी करने के लिए अगर एक गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाए सिर्फ शादी करने के लिए, उसके दिल में तो नहीं है इस्लाम, तो वो होगा मुनाफिक। दूसरा, अगर कोई आदमी, कोई मुसलमान अपने दिल में बुग़्ज़ रखे, हेट्रेड रखे मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमान अगर अच्छे ऊपर आ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, उनको देख के वो चिढ़े, उनसे चिढ़े और उनसे दुश्मनी रखे, उनके मुसलमानों के खिलाफ काम करे, तो वो मुनाफिक की क्वालिटी है। अल्लाह का मजाक उड़ाना, अल्लाह के
दीन का मजाक उड़ाना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाना, ये मुनाफिकत की निशानी है। ये करे तो इस्लाम के बाहर चले जाते हैं, और ये बाहरी तौर पर तो लोगों के सामने मुसलमान नजर आएगा आदमी, लेकिन उधर असल में वो काफिर है, वो मुनाफिक है। काफिरों से बढ़कर उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला पनिशमेंट देगा। उसके बाद के जो पॉइंट है यहाँ पर, ये क्वालिटीज हैं इन एंड इटसेल्फ। अगर कोई इसमें मुतला हो तो मुनाफिक नहीं है, लेकिन ये चीज़ें मुनाफिकों में पाई जाती है, नंबर 4 से लेकर नंबर 8 तक। जैसे अगर वो कोई मुसलमान है जो औरतों के खिलाफ, मर्दों के खिलाफ स्लैंडर करता है, गलत बुरी बात कहता है, झूठे बातें बोलता है, या तो कोई बुराई को बढ़ाता है, अच्छे काम करने से रोकता है, या किसी में बहुत ज्यादा हसद है और ज्यादा होना, बहुत ग्रीडीनेस है, या तो फिर कोई अगर कोई बात, कोई प्रॉमिस करा तो वो हमेशा तोड़ता है, अगर वो लड़ा तो गाली गबोच करता है। ये क्वालिटीज हैं मुनाफिकत के। अच्छी बात करता है लेकिन दिल में करप्शन है, बुराई है। ये हैं क्वालिटीज एक मुनाफिक के। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो मुझको मिले, मैं यहाँ पे लिखा हूँ। पहले जो 3 पॉइंट यहाँ पर हैं, ये फुल एंड फुल मुनाफिक है क्लियर तौर पर। अगर कोई इसमें गलती से कोई कभी कुछ कर दे, जैसे कि अल्लाह का कोई मजाक उड़ा दे, दीन का कोई मजाक उड़ा दे, दीन की शरीयत का कोई मजाक उड़ा दे गलती से, तो उसको तौबा करना है और वापस इस्लाम में आना है। बाकी के पॉइंट नंबर 4 से लेके 8 ये क्वालिटीज हैं इन एंड इटसेल्फ। ये अगर किसी में ये क्वालिटीज हैं तो इसका माना ये नहीं कि मुनाफिक है, लेकिन मुनाफिकों में ये क्वालिटीज पाई जाती हैं, इसलिए इसको पिन पॉइंट करके बताया गया है, हमको इनसे बचना है। हमको कहाना माने फॉर्चून टेलिंग, हाथ की लकीरें पढ़ना, होरोस्कोप बनाना, वास्तु में इन्वॉल्व होना, ये सारी चीजें शिर्क में आती हैं। ये हमारे अकीदे पे डिपेंड करके ये तो या तो ये मेजर शिर्क में जाएगा, माइनर शिर्क में जाएगा, या तो छुपा हुआ शिर्क में जाएगा। हमें चाहिए हम इन सब चीजों से बहुत दूर रहें। आजकल जब बच्चों को नाम रखा जाता है तो वो इंटरनेट में देख के रख रहे हैं, उसमें कोई गलत इश्यू नहीं है, लेकिन साथ में उसका स्टार क्या है और वो कॉन्स्टिलेशंस उसके, उन चीजों का भी उसमें मेंशन आता है। कहते हैं अगर हम इन चीजों को देखकर हम उसको अडॉप्ट करेंगे तो वो फॉर्चून टेलिंग में, पाम रीडिंग में, होरोस्कोप में और वास्तु जैसी चीजों में वो आएगा। अच्छा, अगली चीज जिससे हमको बचना है, तीरा माने एक हमेशा बुरा हो जाता करके जो हमारे दिल में जो ख्याल रहता, उस चीज से हमको बचना है। ये सब हमारे इसके ऊपर और आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हमारे अकीदे के ऊपर डिपेंड करता है ये कौन से टाइप के शिर्क में जाता है। अगर हम कोई अच्छे काम के लिए निकले, आगे से काली बिल्ली रास्ता काट दे, या तो एक आंख वाला सामने आ जाए, तो हम उसको अगर हम गलत समझे, हम समझे कि हमारा काम नहीं होगा। अगर हम निकल के जा रहे हैं, घर से कोई पीछे से पुकार दे हमें, तो हम नाराज होते हैं, निकलते इस टाइम को काय को बुला रहे हो करके, या मैं जो काम पे जा रहा हूँ काम नहीं होता होगा करके।
یہ چیز غلط ہے, یہ تیرہ میں آتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس سے منع کیا ہے. اسی طرح غیر اللہ پر قسم کھانا, ہمیں قسم کھانی ہے صرف اللہ پر. اگر کوئی چیز آپ کو بولنی ہے میں صحیح بول رہا ہوں کر کے, تو ہمیں بولنا چاہیے کہ اللہ کی قسم میں جو بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں. اگر ہم کہیں کہ فلاں پیر کی قسم, تو یہ غلط بات ہے, یہ شرک میں آئے گا. اسی طرح ریا کے بارے میں ہم نے بتایا, اور بدعت سے بھی ہم کو بچنا ہے. بدعت کے بارے میں ہم آگے کے کلاسز میں اور زیادہ دیکھ سکتے ہیں. بدعت کیا ہے؟ بدعت دین میں پرسکرائبڈ میٹرز میں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے شریعت میں ہم کو بتا دیا ہے کہ اس طریقے سے ہم کو عبادت کرنی ہے, ہم اس سے بڑھ کر یا اس کے علاوہ اگر کوئی چیز لے کر آتے ہیں دین میں تو بدعت ہے. ایگزامپل کے طور پر ہم کو میلاد النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے لوگ مناتے ہیں. اس دن وہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت کریں گے, رات بھر جاگیں گے, عبادت کریں گے. اچھی چیز ہے, لیکن یہ بدعت ہے, اس لیے یہ چیز رد ہو جائے گی اللہ کے سامنے. جو بھی نئی چیز اسلام میں جو لایا اس کو رد کر دیا جائے گا. یہ بدعت کیوں ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی, نہ تو صحابیوں نے کی, نہ تو پہلے آئے سو سلف نے, کسی میں بھی ایک بھی آدمی نے کیا سو اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے. ٹائم اب ہو چکا ہے, ہم کچھ کوشچنس میں یہاں دیکھتا ہوں, اگر کسی کو جواب دینا ہے, ڈسکشن میں انوالو ہونا ہے تو ہو سکتے ہیں. پہلا سوال یہاں پہ میں لکھا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ایک مرے ہوئے پیر کے اوپر, پیر کے نام پر قربانی دیتا ہے تو یہ کیا ہے؟ کیا یہ شرک ہے یا تو پھر یہ شرک نہیں ہے؟ کیا اس کی اجازت ہے؟ فار ایگزامپل کوئی بڑے خواجہ نواز چشتی, یہ بڑے پیر ہیں, اچھے لوگ رہے ہوں گے, ان کے نام پر اگر کسی نے قربانی دی تو یہ کیا ہے؟ اگر کوئی جواب دینا چاہے تو دیجئے, لیکن اگر نہیں دے رہے ہیں تو میں پروسیڈ کرتا ہوں. کوئی جواب دینا چاہ رہے اس کو؟ شرک ہے. کیا مجھے کوئی بتا سکتا یہ میجر شرک ہے یا مائنر شرک ہے یا خفی شرک ہے؟ ڈاکٹر انجم بولے میجر شرک ہے کر کے, صحیح بولے, یہ میجر شرک ہے. اللہ کے رسول بات کٹ ہو گئی, کچھ بولنا ہے تو بولو, پھر بھی بات کٹ ہوگی. یہ غیر اللہ کے اوپر قربانی دینا کبیر شرک ہے, بڑا شرک ہے. اللہ نے کہا ہے قرآن کریم میں کہ کہہ دو کہ میری قربانی صرف اللہ کے لیے ہے, اللہ کے نام پر ہی قربانی دینا, کسی اور کے نام پہ دینا یہ میجر شرک میں آئے گا. دوسرا سوال یہاں پہ میں نے لکھا ہے, یہ کوشچنز کو ہم ٹیکل کر لیں گے پورے, اگر یہ کلاس بند ہوگی تو پھر سے جوائن کیجئے 5-10 منٹ, ان کوشچنز کو ہم ٹیکل کریں گے. اگر کوئی آدمی سجدہ کرتا ہے کسی پیر کے قبر پر, سجدہ کر رہا ہے کسی پیر کے قبر کے سامنے اور اس سے مانگ رہا ہے, میجر شرک, یہ میجر شرک ہے. آپ بتا سکتے یہ میجر شرک کیوں ہے؟
صحیح بولے, بہت اچھا جواب دیے, اچھا سمجھے ہیں آپ لوگ. ریزن دے سکتے میجر شرک کیوں ہے؟ صحیح بولے, صحیح بولے, صحیح بولے, صحیح. ہم کو مدد مانگنی ہے, ہم کو ہماری چیزیں, ہم کو جو بھی ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں ہم کو مانگنی ہے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اگر ہم کسی اور کے سامنے دعا کریں گے, کسی اور سے پوچھیں گے جو اس کے قابل کا نہیں ہے, جیسے مرا ہوا پیر, سجدے اس کے سامنے سجدہ کرنا, اس سے دعا کرنا, یہ میجر شرک میں ہے. اور جو کوئی اس میں مبتلا ہے وہ جب تک توبہ کر کے اسلام میں نہیں آ جاتا, ایسے آدمی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. نیکسٹ کوشچن یہاں پر ہے سجدہ کرنا, اپنے دادی کو یا نانی کے سامنے سجدہ کرنا, ایک عزت سے سجدہ کرنا, کسی کے سامنے جھکنا, سلام کرتے وقت جھکنا, اپنے کمر سے لے کے جھک جانا, یا سجدہ کرنا, پیر پڑتا ہوں بولنا, پیر پکڑنا, یہ کیا ہے؟ ہاں, کوئی میجر شرک بولے جیسا دکھتا ہے مجھ کو. اور دو لوگ اوپن ہوئے مائک میں, کوئی اور میجر شرک کو میں بولتی ہوں. ہاں, کائی کو کوئی عطیہ بھی شامہ مائنر شرک, میجر شرک, افرا بھی مائنر شرک ہے. اس کا ریزن ہے, میں خالی آپ فیل کریں. اچھا, کسی کو سجدہ کرنا, عزت کا سجدہ کرنا, کوئی بول رہے ہیں لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا, کلیئرٹی نہیں ہے. کلیئرٹی نہیں ہے بولتے سب. خیر, میں پروسیڈ ہوتا ہوں. اگر مائنر, اچھا یہ دیکھیے, اگر کوئی سجدہ مائنر کہتے ہیں. ہاں مائنر, اوکے. اگر کوئی سجدہ کر رہا ہے کسی کا, اور اس کا انٹینشن اس کو عزت کے طور پر ہے, وہ بڑا آدمی ہے, گھر کا بڑا ہے, اس انٹینشن سے, اس عقیدے سے وہ سجدہ کر رہا ہے یا جھک رہا ہے, تو یہ میجر شرک نہیں ہے, یہ مائنر میں آئے گا. کیونکہ یہ آگے چل کر یہ میجر میں ڈال سکتا ہے. اگر اتنی عزت کر دی اس شخص کی, آگے چل کر غلو ہو سکتا ہے اور میجر میں جا سکتا ہے. لیکن ان اینڈ آن اٹ سیلف ایسا کام کرنا, عزت سے سجدہ کرنا یا جھکنا, یہ بڑا گناہ ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کسی کا سجدہ کرنے کا حکم دیتا انسانوں میں, ایک دفعہ ایک صحابی آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, وہ یورپ وغیرہ جا کر آئے تھے, آ کے بولے کہ وہاں پر لوگ اپنے بڑے لوگوں کا, اپنے کنگز کا, ان کا سجدہ کرتے ہیں, تو میں کیا تمہارا سجدہ کروں؟ تم تو بادشاہوں سے بھی بڑے ہو, کیا میں آپ کا, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں آپ کا سجدہ کروں؟ تب اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, نہیں, کبھی کسی انسان کا, کسی کا بھی سجدہ نہیں کرنا, سوائے اللہ کو چھوڑ کے کسی کا بھی سجدہ نہیں کرنا. اور پھر کہا, اگر میں کسی کا سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو ایک بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے, لیکن اس کا بھی اجازت نہیں ہے. اچھا, پلیز آپ ری لاگ ان کیجئے, یہ کوشچنز کو ہینڈل کر لیں گے.